So let us continue from where we had stopped. This was the last sum we had done in the previous video. So in this video we are just going to do the same thing with a lot more sums. So now this is root of sine 2x. So this can be written as sine 2x the whole raised to half. So sometimes there is a confusion among students whether to go for sine ka derivative or something raised to n ka derivative. So whenever this confusion arises, see from the outside. From the outside we can see it as something raised to n. Correct? If it was sine of root 2x, from outside we would have seen it as a sine term. This is sine 2x the whole raised to half. Now there is a difference between root of sine 2x and sine root 2x. So when there is sine root of 2x, from outside it appears as a sine function, so the solution would be sine of something ka derivative, which would have been cos of that thing, means cos of root 2x into derivative of root 2x. In this case it is root of sine 2x, so this becomes sine 2x the whole raised to half. From outside it is something raised to half, so the solution is n, that thing raised to n minus 1. So half sine 2x raised to half minus 1 into d by dx of sine 2x. So this would be half minus 1 is minus half. And I've already told you in the previous video, if there is a minus half, half stands for square root and minus stands for, it goes into the denominator in that case. So this would become 1 upon root sine 2x. Because of the minus sign, this goes in the denominator, and because of half there is a square root sign. Into derivative of sine 2x is cos 2x into derivative of 2x, because now this would be sine of something. The sine of something is cos of that thing into d by dx of that thing, and we know derivative of 2x is 2. So the answer is 2 and 2 cancels out, cos 2x upon root sine 2x. Next sum is a simple UV rule. You can try this on your own. It's quite straightforward. U into derivative of V plus V into derivative of U. And I've already told you that to the base E is not going to make any difference because log of x and log of x to the base E are the same thing. In the next sum we have log of tan 2x to the base E. Again, from the outside we can clearly see it's a log of something, not tan of something. So log of something is 1 upon that thing into d by dx of that thing. So tan 2x ये तो as it is आ जाएगा, tan 2x का डेरिवेटिव tan of something का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो sec square of that thing. यहाँ पे 2x लिखना है, ये गलत लिखा है. So tan 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec square 2x into derivative of 2x. तो डेरिवेटिव ऑफ 2x हो जाएगा 2. सो फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है ठीक से, 2 सबसे आगे, फिर sec square 2x आएगा और नीचे आएगा tan 2x. नेक्स्ट क्वेश्चन है log of x e raised to x. तो ये बाहर से देखेंगे तो वापस log of something है, तो log of something हो जाएगा 1 upon that thing into d by dx of that thing. अब d by dx of that thing में uv रूल दिख रहा है, तो uv रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले u इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स. अब डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स ही होता है, प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो गया 1. ये स्टेप डायरेक्टली लिखा है. अब हाँ बस, तो ये एज इट इज इसको नीचे कॉपी किया है और फिर ई रेज टू एक्स कॉमन लिया है न्यूमरेटर में, तो वहाँ पे न्यूमरेटर में बचेगा ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे बचेगा x e रेज टू एक्स. ई रेज टू एक्स कट हो गया, आंसर आ गया x प्लस 1 अपॉन 2, x प्लस 1 अपॉन x. सॉरी. नेक्स्ट सम इज y is equal to sin square x cos square x. You have to find the derivative of this thing. So again it's a simple UV rule along with the chain rule. So u into derivative of v, cos square x की जगह पे cos x the whole square लिख सकते हैं,
प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे साइन एक्स द होल स्क्वायर लिखा। ये क्यों किया? चीजों को सिंपल करने के लिए, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स में कंफ्यूजन हो जाता था कि बाहर कौन सा टर्म है, cos का टर्म है या रेस टू 2 है। वापस cos x स्क्वायर और cos x द होल स्क्वायर में फर्क होता है। cos x स्क्वायर अगर होता तो बाहर cos का टर्म होता, ये cos x द होल स्क्वायर है, इसलिए बाहर समथिंग रेस टू 2 है। तो x रेस टू 2 का फॉर्मूला 2x होता है, तो सेम तरीके से cos x द होल स्क्वायर हो जाएगा 2 into cos x, but अलग से डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग, तो समथिंग रेज टू n इज n, दैट थिंग रेज टू n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट थिंग। ये एज इट इज कॉपी किया था, यहाँ पे भी ये एज इट इज कॉपी होगा, और यहाँ पे वही चीज 2 sin x द होल रेज टू 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x। तो ये 2 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स। यहाँ पे भी 2 बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो गया कॉस एक्स। वैसे तो सम यहाँ पे छोड़ सकते थे, बट थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस साइन आगे आ गया, साइन एक्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स के साथ साइन क्यूब एक्स बन जाएगा। सेम चीज यहाँ पे कॉस एक्स जो है वो कॉस क्यूब एक्स बन जाएगा। अब दोनों में क्लियरली दिख रहा है कि साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन है, तो उनको कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, और क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये प्लस साइन माइनस बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस साइन को अगर हम अंदर डाल दे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बन जाएगा और ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस बन जाएगा। और 2 sin x cos x जो है उसका फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, whereas cos square x minus sin square x का फॉर्मूला है cos 2x। तो इसीलिए ये जो चीज है वो sin 2x बन गया और ये जो चीज है वो cos 2x बन गया। That is our answer. Now in the next sum, y is equal to 1 upon sin square x cos square x। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा है और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखा है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, एंड अगेन इज द सेम वे एज द प्रीवियस वन। So you can try this on your own and you can verify the answer. Now, in the next sum, it's quite straightforward. You can try this on your own. Again, this is just like log of x e raised to x, तो सेम टाइप का सम है, खुद ट्राई करना है। ये भी काफी इजी है, ये भी आपको खुद ट्राई करना है। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है, फिर भी हम लोग एक देख लेते हैं। log ऑफ समथिंग है तो क्लियरली 1 अपॉन दैट थिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट थिंग। अब डी बाई डी एक्स ऑफ दैट थिंग में यू वी रूल आ रहा है, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और ये एक्स स्क्वायर है, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही रहेगा। सो अब इसका आंसर जो है वो यहाँ पे लिखा है। सो व्हाट दे हैव डन इज e रेज टू एक्स को कॉमन ले लिया और एक x को कॉमन ले लिया, ठीक है, या फिर रेदर e रेज टू एक्स को ही कॉमन लेंगे। इसके आगे आप खुद सॉल्व करिए, आपको यही आंसर मिलेगा। e रेज टू एक्स को कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और e रेज टू एक्स जो बाहर है वो और वो ये कट हो जाएगा। अब जो अंदर 2x प्लस एक्स स्क्वायर है वो अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग दिस आंसर व्हिच आई हैव डन इट ओवर हियर। So you need to try this sum also. This is quite straightforward. So इधर तक आप खुद ट्राई कर सकते हो।